the very first thing that we will be talking about is percentage. Okay, so देखो यार, percentage में what exactly is there? Percent, it is made up of per plus cent. It is made up of per plus cent. Per means हर एक, cent means 100. Means after every 100 things, after every 100 things of same type, how many things we are having, that is called percent. Is it clear? Like if I will be talking about the total marks in a subject are 100. Total marks कितने हैं? 100 है. आपके कितने आए? आपके मान के चलो 60 आए. टोटल मार्क्स आर 100 and you got 60 marks. You got 60 marks. Means 100 marks. If I will be adding 1 plus 1 plus 1, so I have to add 100 once, yes or no? Pragati, Surbhi, Yashvi, Sachin. I have to add 100 once, right? Yes, sir. Yes, sir. मुझे 100 एक जोड़ने पड़ेंगे तब जाके मेरे पास 100 आएगा. इसका मतलब क्या है कि आई विल बी एडिंग 1 फॉर 100 टाइम्स, बट नाउ आई एम जस्ट हैविंग 1 फॉर 60 टाइम्स. इट मींस व्हाट आई एम हैविंग 60 out of 100, yes or no? So I am having what? 60%. Means Percent. out of 100 I am only having 60 things. It means I am having how much? 60 in terms of percentage. Clear to all of you? Yes, sir. Is it clear? Means after every 100 things what you are having, that is called percent. Got it? Just imagine there are 500 girls. There are 500 girls and 400 boys. 400 boys. 500 girls and 400 boys. Now if I will be asking about the percentage of boys, percentage of boys, so just tell me, as compared to the girls, the percentage will be how much? 400 upon 500 into 100 for percentage. Got it? टोटल कितनी लड़के हैं? 400. लड़कियां कितनी? 500. और परसेंटेज कितनी है? तो जी एज कंपेयर टू गर्ल्स इट इज 80%. यस और नो? 20 कैंसल, 20, 5 into 8 40, 0 का 0. ठीक है, तो 80% विल बी द आंसर. अगर कोई पूछ दे हाउ मेनी बॉयज आर देयर as compared to the girls. But now if I will be talking about, total percentage, if I will be talking about total percentage, means in a class there are 400 boys and 500 girls. 400 boys and 500 girls. Now if I am asking that what is the percentage of boys in the class, so Pragati, I am talking about the total percentage of boys, yes or no? Yes, Pragati? Yeah. Yes, So sure. basically the thing is that I am talking about the percentage of boys in total. So total, so अब मुझे जस्ट एक सिंपल सी बात दिव्या शर्मा बताओ कि टोटल में कितने. तो जस्ट मुझे बताओ 400 लड़के हैं टोटल के नहीं है? बताओ. यस दिव्या? हाँ यस सर, टोटल 400 है, पर अगर 400 बॉयज है ना. टोटल है हमारे पास कितने? Yes. 400 बॉयज. बॉय लेकिन बॉयज हमारे पास 400 हैं, लेकिन हमारे पास टोटल कितना है प्रेजेंट? 400 प्लस 500, 900. so that will be 900. So out of 900 मेरे पास कितने हैं? 400 boys are there. एंड द परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई. क्यों 100 से? क्योंकि हमने क्या देखना है? पर 100 चेक करना ना, इसीलिए. गॉट इट एवरीवन? गॉट Yes, टू नो sir. एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so basically percentage का meaning you need to know that in every 100 things how many things you are having, that is called percentage of that amount. Clear? Now if I will be talking about a method that we have to introduce here, that is called ratio method. What it is called, Gayatri? Ratio method. Got it? Karthik, Gayatri, Madhumit, Pragati, Surbhi, Yashvi, Sachin. It is called ratio. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब देखो रेशियो क्या होता है. whenever you will be writing anything in the terms of p upon q, that is called ratio. Anything you can write in p upon q, that is called ratio. Now what is p is called numerator. p is called numerator
and q is called denominator. आई बात समझ? जो p होता है वो क्या होता है? p is called numerator and q is called denominator. This thing you need to know. ऊपर वाला पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, एंड नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर. क्लियर? गॉट इट एवरीवन? Yes, अब यहां से दो कॉन्सेप्ट आते हैं. टू कॉन्सेप्ट राइजेस फ्रॉम हियर. टू कॉन्सेप्ट राइज फ्रॉम हियर. कौन कौन सा कॉन्सेप्ट? एक तो होता है जब आपने रेशियो से क्या करना है, यू हैव टू कन्वर्ट परसेंटेज फ्रॉम रेशियो, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? परसेंटेज टू रेशियो. एक होता है रेशियो से परसेंटेज जब बनाना है, व्हाट यू हैव टू डू, एंड द सेकंड इज परसेंटेज टू जब रेशियो बनाना है तो क्या करना है. ठीक है? अब देखो, मेरे को मान के चलो परसेंटेज दिया है 20. आई हैव गिवन 20%. यस और नो? दिव्या, कितना परसेंट दिया है मुझे? इट इज 20%. अगर देखो yes, sir. 20% इज गिवन, तो हमेशा याद रखना जब भी परसेंटेज से हमने क्या करना है, रेशियो में चेंज करना है, वी हैव टू डिवाइड बाय 100. व्हाट वी हैव टू डू प्रगति मधुमीत? डिवाइड बाय 100. 100. 100. परसेंटेज को हटाओ, क्या करोगे? 20 का 20 एज इट इज एंड देन डिवाइड इट बाय 100. क्लियर? आई बात समझ? दिस इज व्हाट वी हैव टू डू व्हेन वी हैव टू चेंज परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्जेशन. ठीक है? नेक्स्ट इज रेशियो टू परसेंट. व्हेन वी हैव टू चेंज रेशियो, रेशियो मैंने दे दिया तुम्हें 3/4. I have given you 3/4. What I said, it is in the form of p upon q. तो p upon q, और या बोल लो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. है कि नहीं है? बताओ. टेल मी एवरीवन. इट इज इन द फॉर्म न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 3/4. यस और नो? Yes, Yeah. yes, sir. Yes everyone. So if it is in the form of numerator upon denominator 3/4, so 3 को I have written numerator and 4 को I have written denominator. So what I will be doing? Earlier when I was changing percentage to ratio, percentage to जब ratio conversion हो रही थी, तो that time what I did? 20 upon 100. तो 20, अगर 21 are 20 and 25 are 100, right? 1/5, it was 1/5. So now here if I will be saying ratio to percentage, so what I will be doing? Earlier I have divided by 100. Now what I will be doing? I will be multiplying by 100. Clear? Yes, Yes, sir. sir. Clear? So just we have to do opposite thing. What we have to do? We have to do opposite thing. When we have to change percentage to ratio, that time we have to divide by 100. And when we have to change ratio to percentage, then what we have to do? Multiply by 100. Is it clear to all of you? Now what I will be getting? Yes, sir. 4 into 25. So 25 into 3 will be giving me 75. 75. Clear? Karthik, Gayatri, Divya, Bhanu, Madhumit, Pragati, Surbhi, Yashvi and Sachin. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Any doubt to anyone? No doubt? No, Shivam. ठीक. So it was simple percentage. अगर मान के चलो, अगर तुम्हें दे दे ऐसा कुछ 16 2/3%, 16 2/3%. So now what is given? 16 2/3. So this is called mixed fraction. This is called what, Madhumit? This is called Mixed mixed fractions. fraction. Okay. So first of all, what we will be doing? We will be changing it. We will be changing it. So it means what? It means 16 plus 2/3%. Clear? 16 plus 2/3%. So now what we will be doing? Multiply 3 into 16. 3 into 16, 48. 48 plus 2 will be 50. 50/3. So 50/3%. Clear to everyone? It will be giving 50/3%. So now what I can do? 50/3%. So 50 as it is upon 3, and if we will remove this percentage sign, then we have to multiply by 100 in the downwards. Yes or no? Yes. हाँ. Clear? Yes, sir. आई बात समझ सभी को? Yes, sir. कार्तिक, मधुमित, प्रगति, यशवी, सचिन, दिव्या एंड भानु, गायत्री. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, What I sir. did? I Yes, just sir. divided. I Right. just divided by 100. So now what I will be getting? 50 upon
300. 50 upon 300. 1 0 cancelled, 1 0, and 5 ones are 5, 5 6 the 30. So now it will be 1 by 6. Yes or no? So 16 2 by 3% ko what I can write? I can write 1 by 6 in ratio. Is it clear to all of you? Is it? Yes, sir. Yes, sir. So basically, whenever it will be given you in the terms of mixed fraction, so first change it and then convert it in the ratio. Is it clear? Any doubt here? No, Shivam. No, sir. No, sir. No? No, sir. Okay. So just what we need to know then, that if we have done something, then what is the use of this terminology? If we have learned that what is the ratio method, how to convert a percentage into ratio, then we also need to know that what exactly is the thing that we need to do. कि हमें करना क्या है, इस चीज का अचार तो नहीं डालना है, आखिर कुछ ना कुछ तो इसका मान के चलो होगा ना, राइट? अगर प्रगति, इफ आई एम डूइंग समथिंग, देन देयर माइट बी एनी यूज ऑफ दैट, यस और नो? वरना करने का क्या Yes. फायदा? ठीक है, तो देखो इसका यूज क्या होता है। अब रेशियो जो हमने सीखा ना, इसका यूज क्या होता है, तो देखो मैंने दो चीजें बताई तुम्हें। आई हैव टोल्ड यू टू थिंग्स हियर। द अपर पार्ट इज कॉल्ड न्यूमरेटर, upper part is called numerator, and the lower part is called denominator. ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर विच एवर पार्ट द डिनोमिनेटर इज, जो भी पार्ट हमारा डिनोमिनेटर में है वो क्या क्या होता है याद रखना। दैट इज कॉल्ड टोटल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड टोटल वैल्यू, और दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल वैल्यू। मीन्स किसी भी चीज की टोटल वैल्यू या किसी भी चीज की जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो क्या होती है? डिनोमिनेटर होती है। आई बात समझ? गॉट टू नो? इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, so whatever I am taking in the denominator, that will be the total value or original value of that thing. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. So make sure that whenever we will be having denominator, so one thing you need to know is that whichever thing will be in the denominator, that will be the total value or original value. Got to know? Surbhi, Madhumit, Kartik, Dushyant, Divya, Bhanu, Surbhi, Yes, Yashvi, sir. and Yes, Sanjay. sir. Yes, sir. Yes? Yes, sir. Okay. So let's proceed to the next part. Okay. So if I will be talking about now the thing that we have done. First part is the denominator, the second part is numerator. अगर denominator total value या original value होती है, तो what is numerator then? कि आखिर ये जो numerator है ये क्या है फिर? तो न्यूमरेटर याद रखना, न्यूमरेटर जो होता है वो क्या होता है? दैट इज द करंट वैल्यू ऑफ समथिंग। ये क्या होता है? दिस इज कॉल्ड करंट वैल्यू ऑफ समथिंग। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? व्हाट इज न्यूमरेटर? न्यूमरेटर इज करंट वैल्यू ऑफ समथिंग। ओके, अगर आप मान के चलो 20% की बात कर रहे हो, 20% को आपने लिख दिया रेशियो में 1/5, 1/5। If I have written 1/5, तो 1/5 का मीनिंग क्या हुआ? देखो 5 is total, yes or no? Can I say 5 is total? Yes, sir. Yes, Or sir. now if I will be talking about 1, तो 1 is current value, yes or no? Tell everyone. 1 जो है वो current value है कि Yes, sir. Yes, if sir. it is 1 is current value, तो क्या मुझे बताओ, मैं 20% जो बोल रहा था 20% की वैल्यू ही 1 होगी कि नहीं होगी? Now the 20% will be 1, yes or no? Yes, sir. करंट वैल्यू मतलब क्या? whatever you were solving, that is your current value. Is it clear to all of you now? आई बात समझ Yes, सभी sir. को? आप कोई भी परसेंटेज का मतलब कुछ भी सॉल्व कर रहे थे ना, जिसको आपने रेशियो में कन्वर्ट किया, जो चीज ऊपर आ गई ना, जो भी चीज ऊपर आ गई, दैट विल बी योर करंट वैल्यू। आई बात समझ? जो भी आप सॉल्व कर रहे थे उसी चीज की वैल्यू होती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir.
हाँ जी, भानु, दिव्या, दुष्यंत, गायत्री, कार्तिक, मधुमित, प्रगति, सुरभि, यशवी, सचिन, बताओ Yes, जी। sir. Yes, क्लियर sir. है? Yes, sir. ओके, अगर यहाँ तक क्लियर है तब अब मैं क्वेश्चंस पे बढ़ूंगा, ठीक है, कि इसी को अप्लाई करके कैसे आई विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन, यू नीड टू नो, ठीक है। कल का टास्क तुम लोगों का क्या होगा, सुन लो। सो दैट टुमारोज टास्क विल बी, आई विल बी सेंडिंग यू द डायरेक्ट वैल्यूज ऑफ परसेंटेज, कि रेशियो में परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है, कुछ परसेंटेज की डायरेक्ट वैल्यू रेशियो में क्या, बिकॉज वी आर नॉट सपोज टू डू दिस थिंग अगेन एंड अगेन, that if 20% is given to you, you will not be using again 20 upon 100, 33 1 by 3% ko you will not be doing 100 by 3%, then 100 upon 3 into 100, then you will be taking it as 1 by 3. No, we don't have to this much. Just whatever percentage that are in general use, we will be just using, we will be remembering the fact that yes, this value is equals to this, so that we can ease our work. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Is it Yes, Yes, clear? sir. sir. Okay, so make sure that I will be giving you something to remember and you will be doing that. Okay, so जब रात में क्लास होगी तो I will be asking that thing from you, आपको बताना होगा. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, ठीक है जी. नेक्स्ट बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की तरफ, कि इसको कैसे we will be using in questions. ठीक है, चलो. So the पहला क्वेश्चन भानु, read it. If 20 is added in a number, then number becomes 116 2 by 3%. Find the original number. Find the original number. So what is asked in the question? Question is saying, if 20 is added in a number, if 20 is added in a number, then number becomes 116 2 by 3%, 116 2 by 3%. Find the original number. So first of all, let me tell you one thing. Everything is 100% of itself. How much percent of itself, Pragati? 100% of itself. 100% of itself. Okay, कोई भी चीज होगी ना, वो अपने आप का कितना परसेंट होती है, हमेशा कितना परसेंट होगी, 100% होगी. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, ठीक है, sir. मधुमित, कार्तिक, गायत्री, दुष्यंत, दिव्या, भानु, यशवी, सचिन. Yes, sir. Yes, जी. Yes, sir. everything is always 100% of itself. कोई भी चीज आप काउंट कर रहे हो अपने आप का क्या होगी, 100%. अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि आपने क्या ऐड किया. यू हैव एडेड 20 इन सम नंबर, यस और नो? Yes or no? What you have did? You have added 20 in a number, and when you added 20 in a number, what happened? It becomes 116 2 by 3%. Just tell me one thing. The number first, what will be there? There will be a number. Number में what you have added? 20 you have added, yes or no? Yes, everyone. How much we have added? Yes, sir. 20. 20. Yes, sir. Yes, और sir. जब 20 ऐड कर दिया तो 20 ऐड करने के बाद हाउ मच इट हैज बिकम? 116 2 by 3%. Yes or no? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So now just tell me one thing. I have told you na that every number is 100% of itself. Yes or no? So can I write number Yes, ko sir. 100%? Yes, everyone. Can I Yes, write sir. the number as 100%? I have written as Yes, sir. 100%. Now if I will be talking about this 20, so this 20 I have added, and now I am getting how much? 116 2 by 3%. Yes or no? Yes. Yes or Yes, no? sir. Tell everyone. Yes, sir. Yes, sir. Just tell me one thing, Dushyant. Dushyant, are you there? Sir. Dushyant, just tell me. Earlier I was having 100%, and now I am having 116 2 by 3%, right? Yes, sir. So what I have added? I have added 20. Yes or no? Yes, sir. Nothing other than that 20. Yes or no? Yes, Yes. sir. तो अगर मैंने इस 20 के अलावा कुछ और ऐड नहीं किया और आई एम गेटिंग नाउ 116 2 by 3%, means can I say that whatever change I am getting here,
that is just because of this 20, yes or no? Yes, sir. Yes. So can I say if I will be adding 16 2 by 2 by 3%, 3, then I will be getting 200 116 2 by 3%. 116 मिल Everyone जाएगा. got to Yes, know, sir. yes or no? Yes, sir. बताओ, Yes, sir. सभी को समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. सभी को आया समझ? Tell Yes, everyone. sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. So now just tell me, क्या मैं ये नहीं कह सकता कि यही जो 20 है, यही 20 किसकी वैल्यू है? 16 2 by 3% 2 की by वैल्यू. 3. Yes, sir. Yes or no? Yes everyone. Yes, sir. बताओ, Yes, sir. कह सकते हैं? भानु, गायत्री, कार्तिक, मधुमीत, प्रगति, सुरभि, यशवी एंड सचिन. कैन आई से कि जो 16 2 by Yes, sir. 3% की वैल्यू है, यही वैल्यू 20 है? यस और नो? बताओ सभी. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Because और तो कुछ मैंने ऐड ही नहीं किया. I haven't added anything. I have just did what? I have added 20 and now I am getting 116 2 by 3%. Earlier I was having 100%. Means the change is 16 2 by 3%. That is just because I have added 20. So I can simply say that 16 2 by 3% is equals to 20. Yes or no? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या करना है? आपने क्या करना है? 16 2 by 3% को जस्ट चेंज इट इन रेशियो. 16 2 by 3% को याद करो, जब मैंने अभी रेशियो में चेंज किया था तो इट हैज गिवन मी 1 by 6. यस और नो? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. 16 2 by 3% को जब मैंने चेंज किया था तो क्या किया था बताओ? 50 by 3% बनाया था इसको, and then 50 by 3 को I have did 50 upon 3 into 100, then it was 50 upon 300 और फिर मेरे पास क्या आया था? 1 by 6 आया था. Yes or no? Tell everyone. Yes. Yes, sir. So this is Yes, the sir. only reason why I was saying कि हम क्या करेंगे, इनको वैल्यूज को याद ही कर लेंगे. हम क्या कर लेंगे भानु? वैल्यूज को याद कर लेंगे. ठीक है. कुछ Yes. सिलेक्टिव वैल्यूज आर देयर, वी विल बी जस्ट रिमेम्बरिंग इट, ताकि हमें ये इतना बड़ा जो प्रोसेस है बार बार ये करने की कोई जरूरत ना पड़े. इज इट क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट Yes, एवरीवन? sir. Yes, sir. ओके. Yes, sir. तो अब देखो यहाँ पे इसका फायदा क्या मिला मुझे रेशियो मेथड का. नाउ आई हैव रिटन 16 2 by 3% एज 1 by 5. यस, सॉरी 1 by 6. यस और नो एवरीवन? 1 by 6 लिखा. यस. अब सुरभि मुझे बता, ये जो नीचे 6 है, 6 को क्या बोलते हैं हम? टोटल वैल्यू बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? Yes, sir. या फिर ओरिजिनल वैल्यू बोलते हैं भानु? जी. यस. तो दिव्या अगर मुझे बताओ, अगर नीचे वाला पार्ट द डिनोमिनेटर इज टोटल वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू, तो व्हाट विल बी द न्यूमरेटर? न्यूमरेटर विल बी द करंट वैल्यू. यस और नो? Current value. Current value. And now tell me what was the current value? The current value was 16 2 by 3%. Yes or no? Yes, sir. तो क्या 16 2 by 3% की वैल्यू 1 है कि नहीं है? बताओ सभी. 16 2 by 3% is equals to 1. Yes, sir. और इसी Yes, 1 sir. की वैल्यू मेरे को 20 मिल रही है कि नहीं मिल रही? बताओ. तो क्या आई कैन राइट 1 is equals to 20? Yes or no everyone? Yes, sir. Yes, sir. सर 20 कैसे आ रहा था? इस पे डाउट है. बता रहा हूँ. जस्ट वेट. देखो 16 2 by 3% को मैंने 1 by 6 किया. ये यू गॉट टू नो? यस ये सर. बात समझ आई? तो मैंने क्या बोला कि जो भी चीज को तुम चेंज कर रहे हो, वट एवर यू आर चेंजिंग दैट इज द करंट वैल्यू. यस और नो? यस वो सर. क्या है? वो करंट वैल्यू. और करंट वैल्यू ऊपर बताओ न्यूमरेटर में होगी तो 1 है कि नहीं है? बताओ. यस सर. तो इसका मतलब 16 2 by 3% की वैल्यू 1 हुई कि नहीं हुई? हुई सर. हुई. और यहाँ पे मुझे पता है ना 16 2 by 3% की वैल्यू ही 20 है. यस और नो? Yes, sir. सर ये इसका नहीं लगा पता सर. 20 कैसे है मतलब वैल्यू? भाई मेरे, अगर देखो 100% था, 100% था, यस सर. 100% से कोई चीज बिकेम 116 2 by 3%. यस. सर 100 से 116 by 2 बना. तो मुझे बताओ 16 2 by 3 ही ऐड हुआ होगा ना इसमें? यस सर. और आपने क्या ऐड किया? 20 ऐड किया था ना? 28 किया था. तो
अगर आपने 20 ऐड किया, कोई तीसरी चीज ऐड ही नहीं की, इसका मतलब क्या है? दिस 16 2/3% इज इक्वल टू 20। आई बात समझ? तो अब इसको मैंने अब यहाँ पे रेशियो में अगर 1 लिखा है तो इस 1 की वैल्यू 20 होगी कि नहीं होगी? होगी। यस सर होगी। तो जो मैं चीज ऐड कर रहा हूं अगर उसकी वैल्यू 1 है और उसकी वैल्यू 20 है तो मुझे क्या पता करना है? ओरिजिनल नंबर पता करना है कि नहीं पता करना? बताओ। यस एवरीवन, आई हैव टू फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो मुझे बताओ ओरिजिनली जो चीज 6 है उस चीज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 into 20। 6 into 20, अगर एक की वैल्यू 20 है तो 6 into 20 कितना हो जाएगा? 120। यस और नो एवरीवन? Yes, sir. बताओ सभी। Yes, sir. इज इट क्लियर Yes, sir. एवरीवन? इज इट क्लियर? अब देखो इसी को मैं एक सिंपल दूसरे वे में समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो 16 2/3% की वैल्यू 1 थी, 1 की वैल्यू 20 आई, तो मुझे बताओ 100% क्या होगा? 6 होगा। तो 6 की वैल्यू मैंने क्या निकाल दी? 120 निकाल दे कि नहीं निकाल दे? यस और नो? यस। अब इसी का एक अगर सेकंड अगर मेरे को करना हो ना, सेकंड वे में अगर इसको सॉल्व करना हो तो कैसे कर सकता हूँ? चेक करना। ठीक है, सेकंड वे में अगर मेरे को करना होता तो व्हाट आई कुड हैव डन, मुझे बताओ कोई चीज 116 2/3% बन रही है कि नहीं बन रही है? मतलब करंट वैल्यू जो अब उसकी बन रही है कितनी बन रही है? बोलो। 116 2/3%। अगर मैं 116 2/3% को रेशियो में बदलूंगा तो मुझे बताओ रेशियो में वैल्यू कितनी आएगी? टेल एवरीवन। इफ आई विल बी converting 116 2/3% in ratio, then what will be the value? 7/6. 7/6 7 by आनी 6. चाहिए। Everyone is getting 7/6. All of you are getting. जब मैंने 116 2/3% को चेंज किया तो everyone is getting 7/6. Yes or no? Yes. Yes, sir. Yes or no, Yes, everyone? sir. Yes, sir. Okay. So just tell me one thing. यहाँ पे जो ये 6 है, ये 6 क्या है भानु? बताओ। ओरिजिनल है कि नहीं है? जी सर। ये ओरिजिनल होगा। और ये मुझे बताओ दिस 7 विल बी द करंट वैल्यू? यस और नो? जी सर। यस एवरीवन, आर यू एग्रीइंग टू दिस फैक्ट? गायत्री, दिव्या, Yes, कार्तिक, sir. मधुमती, प्रकृति, सुरभि, यशवी, सचिन, Yes, sir. कि अगर ओरिजिनल 6 था तो करंट वैल्यू 7 है कि नहीं है? बताओ। यस और नो? करंट वैल्यू इज 7। नाउ जस्ट टेल मी वन थिंग सुरभि, कोई चीज ओरिजिनली 6 थी लेकिन अब उसकी करंट वैल्यू जो है वो 7 हो गई, तो 6 से 7 हुआ, इसका मतलब तुमने 1 का एडिशन किया कि नहीं किया? Yes, sir. You have added 1. If something was 6 but now it is 7, so you have added 1 in this or not? Tell everyone. आपने Yes, sir. एक ऐड किया और आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने कितना ऐड किया था? 20 ऐड किया कि नहीं किया? बताओ। 20. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू हैव एडेड 20। तो अगर एक की वैल्यू अगर 20 हो गई तो आपसे पूछा क्या है? व्हाट दे हैव आस्क्ड फ्रॉम यू? फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर कितना था बताओ? 6 था कि नहीं था? तो 6. अगर एक की Yes, वैल्यू sir. 20 तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जवाब दो। टेल एवरीवन। यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रेशियो मेथड का क्या रोल है? देखो अब इसको तुम परसेंटेज से करते ना तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है प्रोसेस, तो परसेंटेज से ना करना पड़े इसीलिए हमने क्या डिलीवर किया यहाँ पे? रेशियो। कि डायरेक्ट रेशियो में कन्वर्ट करो जो भी चीज दे रखी है एंड गेट द आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जस्ट दो चीजें आपको दिमाग में रखनी है। 2 things you need to remember. One, that whenever a denominator will be there, that will be the total value or original value, and whatever you will be taking in the numerator, that will be your current value. Is it clear to all of you? Yes, sir. Is Yes, it? sir. Bhanu, Gayatri, Karthik, Madhumit, Pragati, Surbhi, Yes, Yashvi and Sachin. Clear है? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। Okay. Sir, तो second वाला, I'm sorry to interrupt. So हाँ, बोलो, बोलो। second वाला method is way easier. वो ज़्यादा easy है as वो compared to पहले वाला method. वो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए, ये वाला जो मेथड था ना
ये जस्ट आपको एक समझाने के लिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है वो करने को बोला था। मेथड यही रहेगा लास्ट वाला ही। क्लियर? Yeah. आई हैव जस्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड द फैक्ट कि कैसे चीजें हो रही हैं, कि आपके दिमाग के ऊपर से चीजें ना जाए, इसलिए आई बात समझ, कि एक अप्रोच आप समझ पाओ, इसलिए मैंने इतना कुछ आपको बताया। वरना क्वेश्चन कितना सा है भानु? ये जो लास्ट में जो 2 लाइन की है ना, इतना सा ही है। क्लियर? Okay, sir. That Yes, was sir. just a demonstration. You should get that what exactly is happening, but the question is just this much, 2 facts. Okay? देखो अभी अगला क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे, 2 स्टेप में करेंगे। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या दे रखा है क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करो। कार्तिक कुमार, स्टार्ट रीडिंग दिस क्वेश्चन। If 11 1 by 9% of number is added with itself, then the number become 1800. Find the original number. Find the original number. ठीक है? Just now tell me one thing. What exactly is happening here? 11 1 by 9% of a number is added with itself. Yes or no? Yes, Yes, or no? Yes. So now just tell Yes, me sir. one thing. अगर आप 11 1 by 9% किसी चीज में ऐड करोगे तो इसका मतलब 100% में you are 100 adding by what? 9. 11 1 by 9. 1 by 9. 1 by 9%. So what you will be getting? 111 1 by 1800. 9%. Yes or no? Yes, sir. Yes or no? Tell everyone. You will be getting this. Now everyone Yes, sir. solve this. Do one thing. Solve this in ratio. Convert करो इसको ratio में. What you will be getting? Fast everyone. 10 by 9. 10 by 9. Everyone is getting 10 by 9. Yes, sir. Yes, sir. Everyone is getting 10 by 9. Pragati, Madhumeet, Gayatri, Dushyant, Divya, Bhanu, Yashvi and Sachin. Yes. sir. Everyone is getting 10 by 9. Now just tell me, what is this 9 here, Pragati? This 9 is what? It's the total value or the original value. Original value. This is original value and this 10 is our current value. Yes or no? Yes. Yes or no? 9 is the original value and 10 is the current Yes, sir. value. Just tell me, कोई चीज 9 से 10 हुई, प्रगति, if something has become 10 from 9, so we have added 1. Yes or no? We have added 1 in that. Yes. 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 और अगर 1 ऐड कर दिया हमने तो 1 ऐड करने के बाद that became 10. Yes or no? That became 10. Yes. और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1800 दे रखी है कि नहीं दे रखी है? बताओ। यस एवरीवन, बताओ। यही दे रखी है ना कि जब आपने 11 1 by 9% ऐड कर दिया, इसका मतलब वो 9 से चीज 10 हो गई और वो चीज 9 से तो 10 हो गई रेशियो में, लेकिन नंबर में वो कितनी हो गई? 1800 हुई कि नहीं हुई? टेल एवरीवन। यस। Yes, sir. सुरभि, Yes, sir. मधुमी, कार्तिक, गायत्री, Yes, sir. सचिन। Yes, Yes. sir. Yes, sir. अगर कोई चीज 10 होके कितनी हो गई? 1800। तो अगर 10 की वैल्यू 1800 तो जस्ट टेल मी 1 की वैल्यू कितनी होगी? 180 होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. If 10 is equal to Yes, sir. 1800, then 1 will equals to 1800 upon 10, that is 180. And now what they have asked? They have asked original number. So now tell me, original number is 9. So 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 into 180. So means 1620 will be the right answer. Yes, everyone. जी. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Anyone having any doubt here? किसी को सर कोई डाउट? एक चीज सर, हाँ, बताओ। जब आप वो 10 by 9 कर रहे थे, वो आपकी आवाज कर गई। 10 by 9 कैसे आया? 111 1 by 9% को जब चेंज करोगे तो 10 by 9 ही आएगा ना। ये जो करोगे 111 into 9, तो ये क्या हो जाएगा? 999 ठीक है। प्लस ओके ओके ओके। हाँ जी, अपॉन 100। ऐसा करेंगे कि नहीं ठीक है करेंगे?
ठीक है ठीक है। गॉट इट? हाँ जी हाँ जी, थैंक यू सर। एवरीवन गॉट टू नो दिस कॉन्सेप्ट? क्या किया मैंने यहाँ पे? Yes, sir. आई बात समझ? एवरीवन गॉट टू नो? Yes, Yes, sir. ओके, इसको देखो एक छोटे मेथड में और भी कर सकते हैं, एक और वे में कर सकते हैं। कैसे? देखो 11 1/9% ऐड किया है ना, तो मुझे बताओ जब 11 1/9% की अगर मैं बात करूं, रेशियो में चेंज करूंगा, तो मुझे बताओ जल्दी से रेशियो में कितना आएगा? 1/9 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा? यस और नो? Yes, sir. आएगा ना? 1/9 आएगा। नाउ जस्ट टेल मी, ये 9 तुम्हारा ओरिजिनल हो जाएगा और ये 1 जो हो जाएगा करंट वैल्यू। तो करंट तुम किसको बदल रहे हो बताओ? 11 1/9 को बदल रहे हो कि नहीं बदल रहे हो? 11 1/9 क्या कर रहे हो तुम? ऐड कर रहे हो। मतलब 9 में जब तुम 1 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा बताओ? 10 बन जाएगा ना। 9 में 1 ऐड करोगे 10 बनेगा। और 10 की वैल्यू कितनी है? 1800 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180। और यहाँ से भी 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1620। लेकिन आई वोंट सजेस्ट ये वाला मत करो, थोड़ा कंफ्यूज हो गए तो डायरेक्ट जो मैंने ये बताया ना तुम्हें, इसी पे कर लो। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखना कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों के लिए, जल्दी स्टार्ट करो करना। स्टार्ट डूइंग एवरीवन। आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन इन द चैट बॉक्स। ठीक है, चैट बॉक्स नहीं, मैं पोल क्रिएट कर रहा हूं। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, नो वन विल बी टेक्सटिंग। एक पोल दिखेगा तुम्हें, 4 ऑप्शन दे रहा हूं, ए बी सी एंड डी। 4 ऑप्शंस आर देयर। ठीक है जी, 4 ऑप्शंस दे रहा हूं, आप लोगों को बताना है। ठीक है कि क्या होगा। ओके एवरीवन, आई बात समझ? चलो मैं कर रहा हूं इस चीज को, आप लोग बताएंगे। ठीक है, ए ऑप्शन इज 1400, बी ऑप्शन 1700, सी ऑप्शन इज 300, डी ऑप्शन इज 1100। ओके, ये ऑप्शन है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। पोल क्रिएट कर रहा हूं, ऑप्शन आप चूज कर लोगे जो भी आपके हिसाब से आएगा। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दे दिया। जाओ करो स्टार्ट सब। एवरीवन आंसरिंग, स्टार्ट आंसरिंग द पोल, जिनका भी सॉल्व हो जाए। चलो, मधुमीत एंड भानु ने सही किया है। देखो चेक करते हैं, जिन लोगों का मान के चलो न्यू हो इस प्रोसेस में, यू वर नॉट एबल टू कंप्लीट विद इन टाइम। ठीक है ना? अब आ जाओ जी, बात करेंगे हम सुरभि से। सुरभि अनम्यूट योरसेल्फ। सुरभि, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. सुरभि, 1400 was added, yes or no? Yes, sir. What the number has become now? 566 2/3%, Yes, sir. राइट? 566 2/3%। तो अगर मैं इसको चेंज करूं रेशियो में तो क्या मिलेगा मुझे? टेल मी व्हाट इफ आई विल बी चेंजिंग इट इन रेशियो, व्हाट आई विल गेट? ये बन जाएगा तेरा 1698 प्लस 2 डिवाइडेड बाय हाँ, sir. 3%। 1700. हाँ. ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? 1700 अपॉन 3 इंटू परसेंटेज का 100। तो बोलो, 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो, इट विल बी नाउ 17/3। Yes, sir. यस, इसका मतलब 3 वाज द ओरिजिनल। दुष्यंत, दिव्या, गायत्री बताओ, 3 वाज द ओरिजिनल, यस और नो? Yes, sir.
Yes. sir. And Karthik, Pragati, Yashvi and Sachin. 17 is the current value, yes or no? Yes, sir. कोई चीज 3 से कितनी हो गई बताओ प्रगति? 3 से 17 इट हैज बिकम। Yes. तो अगर 3 से 17 किसी चीज को बनाया तो मुझे बताओ इसमें 14 ऐड किया कि नहीं किया? 14 ऐड करोगे तभी ना। yes or no? Yes. If you will be Yes, adding sir. 14 in something then only Yes, you will sir. be getting 17 ना। अगर आप 3 में 14 ऐड करोगे तभी ना you will be getting 17। तो आपने 14 ऐड किया है लेकिन क्वेश्चन कहता है जी आपने 1400 ऐड किया है, तो आपका 14 जो है 14 है, योर 14 इज इक्वल्स टू 1400 ऑफ द क्वेश्चन। सो आपका 1 विल इक्वल्स टू 100 ऑफ द क्वेश्चन, यस और नो? यस और नो? Yes, sir. तो आपका एक क्वेश्चन के 100 के बराबर, तो मुझे बताओ आपका जो ओरिजिनल 3 आ रहा है वो क्वेश्चन के कितने के बराबर? 3 की वैल्यू 300 होगी कि नहीं होगी? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ sir. जी, Yes, sir. शर्मा जी के लड़के दुष्यंत, आई बात समझ? यस सर। गॉट इट? तो बेसिकली क्या है, व्हेन वी विल बी लर्निंग द रेशियो मेथड इन दीस क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन जो हो जाता है क्या हो जाता है? लप्पू सा क्वेश्चन बन जाता है, झिंगुर सा क्वेश्चन बन जाता है, राइट? गॉट इट? तो जो बड़े बड़े जो कारनामे हैं वो हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल से लॉजिक से जस्ट आपके दिमाग में चीज रहनी है कि ऊपर वाला पार्ट इज द न्यूमरेटर पार्ट इज करंट वैल्यू एंड द लोअर पार्ट इज ओरिजिनल वैल्यू। बस इतना दिमाग में आ जाए तो देख लो ना, घटाने की बात कर रहा है कि जोड़ने की बात कर रहा है। यहाँ पे अगर एडेड है ना, तो यहाँ अगर एडेड की जगह इफ इट विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो सब्ट्रैक्टेड में क्या देखोगे? कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कितनी वैल्यू दे रखी है, दैट्स इट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? Yes, Yes, sir. sir. कर Yes, लोगे sir. ऐसे क्वेश्चन? कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसे क्वेश्चंस में? सर लॉजिकली देखा जाए तो आंसर इसका 300 इन ऑप्शंस के हिसाब से जो आपने दिया था वो तो 300 ही बन रहा था, बिकॉज देखा हाँ जाए तो 1400 तो आंसर हो ही नहीं सकता। हाँ, वो तो ठीक देखो है, वही है ना, वो तो मान के वही चलो, वो चीज तो मैंने थी। अभी दे हाँ दिया, अपने मन से ऑप्शन दे दिया है ना। हाँ, वो आपने अपने मन से दिया था, तभी मैं जब सॉल्व कर रहा था ना तो इशू हाँ वही आया। मैं जब सॉल्व करने लगा तो वो सिली मिस्टेक वही हुई, जब हम 566 और 2/3 करते हैं तो हाँ इंटू 3 इंटू 566 प्लस 2 करते हाँ है ना। तो जब मैं हाँ, वो कर रहा था तो फिर मैंने +2 नहीं करा, इसलिए वो क्वेश्चन लंबा होता चला गया। फिर वो सिली देखो मिस्टेक जब होती है जब वहीं पे अटक जाता है, वही सिली जल्दी जल्दी के मिस्टेक तो चक्कर हमें में। खत्म करनी है, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा ना एक बार, तो यार वही 10 सर। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने दूंगा ना। इफ यू विल बी प्रैक्टिसिंग जस्ट 10 क्वेश्चंस इस टाइप के ना, तो भाई इस मामले में प्रोफिशिएंट हो जाओगे कि कैसा भी क्वेश्चन दे दे, कुछ भी दे दे, विद इन 30 सेकंड्स तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जब तक दुनिया वही क्वेश्चन सर, पढ़ के समझेगी ना, तब तक तुम आंसर निकाल के बैठे रहोगे, ठीक है? वही सर, ठीक है सर। ओके, गायत्री, दिव्या, भानु, कार्तिक, मधुमित, प्रगति, सुरभि, यशवी एंड सचिन, आ गया सभी को समझ अच्छे से पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर समझ आ गया तो अच्छी बात है। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस करने का, एज आई प्रॉमिस्ड। मैंने पहले बोला था कि आई डोंट बिलीव इन कॉपी पेस्टिंग फलाना ढिमका करके मैं वो करूं और फिर मेहनत करूं। इससे बढ़िया मैं तुम्हें डायरेक्ट सोर्स दे दूंगा, उससे प्रैक्टिस करोगे। क्लियर? मेरा मकसद है सिर्फ तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाना। गॉट इट? Yes, sir. चलो, तो जो Yes, sir. क्वेश्चंस दूंगा आप लोग क्वेश्चंस को कर लोगे सॉल्व। वहां से आगे का एक नया कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इसी में एक और तरह का क्वेश्चन। चेक करो जरा, दिख रहा है सभी को ये क्वेश्चन? पढ़ना स्टार्ट करेंगी प्रगति दास। A number is to be multiplied by 4 by 5, but by mistake it is multiplied by 5 by 4. Find the percentage error. ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है? परसेंटेज एरर। अब मुझे एक सबसे पहली चीज समझानी है आप लोगों को, दैट व्हाट एग्जैक्टली इज एरर। एरर देखो क्या होगा, हमेशा जस्ट रिमेंबर वन फैक्ट। आपको मान के चलो ओरिजिनल वैल्यू एक चाहिए होगी, यस और नो? किसी चीज की ओरिजिनल वैल्यू चाहिए होती है हमेशा, राइट? It is required to have original value of something, but what happens? Yes, sir. कई बार you will get ज्यादा, कई बार you will get more, कई बार you will be getting less। तो जो more या less, जो भी डेविएशन होती है from the original value, original value से जो भी क्या होगी डेविएशन, that is called error।
Clear to all of you? Yes, sir. Means ओरिजिनल वैल्यू से कोई भी डेविएशन, एनी डेविएशन काउंटेड ऑन ओरिजिनल वैल्यू इज कॉल्ड व्हाट? एरर. आई बात समझ? गॉट इट? मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर 100% से अगर वो 80% हो गया तो 20% जो डेविएशन हुआ वो परसेंटेज एरर होगा. परसेंटेज एरर हुआ. वो 20% क्या हुआ? परसेंटेज एरर है. क्योंकि आपको कितना चाहिए था? आपको 100 चाहिए था, लेकिन मिला आपको कितना? 80. चाहिए 100 था, डिजायर्ड कितना था? डिजायर्ड वाज 100, you got how much? You got 80. Desired was 100, you got 80. So 20 less you got, yes or no? और ये 20 less किसका मिला? ओरिजिनल डिजायर्ड का मिला कि नहीं मिला? तो कितना परसेंट एरर हुआ? 20% एरर हुआ, राइट? इसी तरह मान के चलो डिजायर्ड था 100, मिला आपको 110. तो मुझे बताओ 10 ज्यादा मिला कि नहीं मिला? 10 ज्यादा मिला किसका? डिजायर्ड का. अगेन तो मतलब कभी भी एरर जब भी काउंट होगा, एरर विल बी ऑलवेज काउंटेड ऑन व्हाट? ओरिजिनल वैल्यू. आई बात समझ सभी को? हमेशा याद रखना, परसेंटेज जब भी काउंट होता है एरर में तो हमेशा किस पे होगा? ओरिजिनल वैल्यू पे होगा. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस सर. यस. चलो समझते हैं एक चीज को. अ नंबर इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 4/5. कोई नंबर है, मैंने मान लिया n नाम का एक नंबर है. n एक नंबर है जिसको मल्टीप्लाई किससे करना था? टू बी मल्टीप्लाइड. अब यहाँ पे देखो टर्मिनोलॉजी समझो. व्हाट इज रिटन? टू बी. टू बी मतलब क्या? ओरिजिनल. टू बी का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल. यू वर सपोज टू बी अराइव मतलब क्या? ओरिजिनली आप पहुंचने वाले थे. तो जहां पे भी टू बी आएगा दैट इज द ओरिजिनल पार्ट. आई बात समझ? तो क्या करना था आपने? ओरिजिनली उस नंबर को क्या करना था? मल्टीप्लाई करना था 4/5 से, राइट? ये आपकी क्या है? ये है आपकी ओरिजिनल वैल्यू. ठीक है जी. लेकिन आपने क्या कर दिया? बट बाय मिस्टेक इट इज मल्टीप्लाइड. मतलब दिल गलती कर बैठा है. गॉट इट? क्या किया दिल ने? गलती कर दी और उसको क्या मल्टीप्लाई कर दिया? 5/4 से. तो अगेन नंबर तो सेम ही है, बट आपने क्या कर दिया? गलती से यू हैव मल्टीप्लाइड इट बाय 5/4. तो ये आपका, मुझे बताओ, ये न्यू नंबर बनेगा कि नहीं बनेगा? ये ओरिजिनल रिजल्ट और ये न्यू रिजल्ट. यस और नो? टेल एवरीवन. यस सर. Yes, sir. यस. तो अब सबसे बड़ी दिक्कत जो यहाँ पे है, परेशानी है, द बिगेस्ट क्वेश्चन हियर इज कि व्हाट इज एग्जैक्टली दिस n? ये n को मैंने मान तो लिया, लेकिन ये n है क्या? तो n क्या है, इसको हम कैसे अज्यूम करते हैं, समझो. आप बताओ मुझे, जस्ट टेल मी. यहाँ पे ऊपर 4 है, नीचे 5 है, और यहाँ पे ऊपर 5 है, नीचे 4 है. यस और नो? यस सर. तो व्हाट वी हैव टू डू इन दिस केस? इन दिस केस ये जो n होगा ना, n क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर. क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर. ठीक है जी. इट विल बी एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर. अब देखो डिनोमिनेटर यहाँ पे कितना था बताओ सुरभि? 5. और यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है? 4. यस और नो? 4. Yes, sir. तो 5 और 4 का क्या करना है? 5 और 4 का हमने क्या करना है? एलसीएम. तो मुझे बताओ 5 और 4 का एलसीएम 20 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. The lowest common factor, least common factor of 5 and 4 will be 20. Is it clear to Bhanu, Divya, Dushyant, Gayatri, Karthik, Madhumit, sir. Pragati, Surbi, Yashvi, Sachin? Yes, sir. Clear है सभी को? तो मुझे जस्ट सिंपल चीज Yes, बताओ. If the number is 20, तो अब मुझे बताओ नंबर अगर 20 हो गया तो अब क्या करना है? 20 को 4/5 से मल्टीप्लाई कर दो. तो मुझे बताओ जब 20 को you will be multiplying by 4/5, तो मुझे बताओ what you will be getting? 5 into 4, 4 into 4, 16 मिलता कि नहीं मिलता बताओ? Yes, sir. Yes, sir. Tell everyone. In this scenario, I must be getting 16. But what exactly happened? I multiplied this number 20 by 5/4. 5/4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा बताओ? 25 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Yes, Yes. sir. So basically what happened? I was supposed to get 16, but accidentally I got 25.
तो मुझे बताओ मिलना चाहिए था 16 और मिल गया 25, तो कितना ज्यादा मिल गया मुझे? 9। टेल एवरीवन, कितना ज्यादा मिला? 9 ज्यादा मिला कि नहीं मिला? 9 ज्यादा मिला मुझे। 9 का क्या हो गया? एडिशन। तो चाहे एडिशन हो चाहे सब्सट्रैक्शन हो, माना क्या जाता है? एरर माना जाएगा। इज इट क्लियर एरर टू माना एवरीवन? जाएगा। Yes, Whether we sir. are getting less or we are getting more, it will be counted as an error. Is it clear to all of you? So I was supposed to get 16, but what I got? I got 25. So agar I was supposed to get 16, but I got 25, then how much I got? 9 ठीक है, I got more. 9 I got more ना? तो यही जो 9 होगा मेरा क्या बन गया? एरर। तो अब मुझे बताओ, मैंने क्या बताया था? एरर इज ऑलवेज काउंटेड ऑन ओरिजिनल वैल्यू, यस और नो? एरर जो होगा हमेशा किस पे काउंट किया जाता है? ओरिजिनल वैल्यू पे। ओरिजिनल वैल्यू। तो मुझे बताओ एरर कितने का आया? 9 का एरर आया। एरर कितने का आया? 9 का आया। और कितने पे आया? तो ओरिजिनल वैल्यू कितने थी? 16 आनी चाहिए थी। और परसेंटेज पता करना है तो इनटू क्या कर into देंगे? 100. Is it clear to all of you? Yes sir. Got it everyone? 56.25 आना चाहिए हमें। Basically हाँ। error was of 9. एरर कितने का आया? 9 का आया। ओरिजिनल वैल्यू पे काउंट करेंगे एरर कि ओरिजिनली मेरे को कितना चाहिए था? तो 16 चाहिए था। तो 9 एरर आया कितने पे? 16 पे। तो डिवाइडेड बाय 16। और परसेंटेज के लिए व्हाट आई डिड? 100 से मल्टीप्लाई। 4 into 4 16, 25 into this। तो मुझे बताओ 225 अपॉन 4 करोगे तो इट विल बी गिविंग यू 56.25%। यस और नो? टेल एवरीवन। Yes sir. Yes sir. एवरीवन, मेरा एक डाउट है। हाँ जी बोलो। अब आई कुडंट अंडरस्टैंड, जो नंबर पे हमने लिया है एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, व्हाई डिड वी टेक दैट? ये हमने क्या किया? देखो अब अगेन मुझे एक सिंपल सी बात आपसे पूछनी है। यहाँ पे एक नंबर को मल्टीप्लाई किया जाना था 4/5 से, यस और नो? किया जाना था। यस। लेकिन उसी नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 5/4 से कर दिया। हाँ, दोनों केस में नंबर तो सेम ही था ना? और अगर डिफरेंट होता तो डिफरेंट होता तो क्वेश्चन ही नहीं होता ना। फिर ये डिफरेंट होता तो क्वेश्चन ही नहीं होता है। नहीं, क्वेश्चन ही मतलब तो हुआ है। नहीं हाँ, देखो ना, नहीं, what I'm- क्वेश्चन ही तो हुआ। अगर आप कोई भी ऑपरेशन लगाओगे, सिंपल सी बात है, कोई भी ऑपरेशन अगर आप लगाओगे तो सेम चीज पे लगाओगे ना। ये है हाँ, जनरल। अगर यहाँ पे अगर मैं ये बोलूं कि अ नंबर इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 4/5 बट द सेकंड नंबर इज मल्टीप्लाइड, फिर तो क्वेश्चन ही नहीं रह गया ना। क्वेश्चन ही ये था। क्वेश्चन ही क्या था? क्वेश्चन ही ये था कि एक नंबर है जिसको मैंने मल्टीप्लाई तो करना था 4/5 से, 4/5 से, लेकिन गलती से मेरे को सुनने में दिक्कत हो गई क्योंकि मैं उस टाइम पे खाना खा रहा था। मैंने क्या किया? उसको ही, उसी नंबर को क्या कर दिया? 5/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। और जब मैंने करना था मुझे 4/5 से, बट आई डिड बाय 5/4, तो ऑब्वियस सी बात है एरर तो आएगा ही आएगा ना। तो वो और अगर मैं एरर 5/4 से ना होके अगर वो 6/10 या अगर कोई ऐसा दूसरा नंबर होता तो? ये देखो अब क्वेश्चन है। अब ये वाला सही क्वेश्चन पूछा तुमने। मान के चलो यहाँ पे 5/4 से ना करके मैंने कर दिया होता इसको 3/9 से। किससे कर दिया मैंने? 3/9 से। और 3/9 को क्या मैं 1/3 भी तो लिख सकता हूँ? यस और नो? लिख सकता हूँ ना? यस सर। मैंने बोला कि इट इज बाय मिस्टेक इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1/3, कि मैंने क्या किया? उसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैंने 1/3 से अब आई हैव मल्टीप्लाइड, तो मुझे बताओ इस केस में डिनोमिनेटर में 3 है कि नहीं है? है। और करना मैंने किससे था? 4/5 से। तो इसके डिनोमिनेटर में 5 है कि नहीं है? है। अब उस केस में मैं क्या करूंगा? इस n की जो वैल्यू निकालूंगा मैं कैसे निकालूंगा? 5 और 3 का एलसीएम लेके। आई बात समझ? ओके, गॉट इट, समझ गई। आई बात? एलसीएम मतलब क्या? सर एलसीएम उसका लेने का सवाल रीजन समझ? हाँ भानु।
सवाल आई थिंक यही था कि स्पेसिफिकली हमने एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स क्यों ही लिया, क्यों लिया, वही तो मैं वही समझा रहा हूँ ना, अब मैं वही समझा रहा हूँ कि हमने एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर क्यों लिया, रीजन ये समझा रहा तो हूँ। सिंप्लीफिकेशन में इजी रहेगा ना आगे चल के, तो एलसीएम फिर ये अगर हम लिया हमने, एलसीएम इसलिए लेते लिया तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, क्योंकि देखो कोई ना कोई एक नंबर तो चुनना पड़ेगा ना तुम्हें, क्योंकि तुम्हें तो एग्जैक्टली नहीं पता ना व्हाट इज दैट नंबर, तो वो नंबर कौन सा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि दोनों वो नंबर जो है वो क्या है, सेम है कि नहीं है भानु, सेम है। दोनों नंबर अगर सेम है तो कभी भी सेम नंबर अगर हमने पता करना होता है तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल किसका, तो इसका, चाहे वो 4/5 हो, चाहे 3/5 हो, चाहे 5/4 हो, गॉट इट। तो मैं क्या ले रहा हूं, उसका लीस्ट ले रहा हूं कि एटलीस्ट जो लीस्ट नंबर होगा ना, कॉमन है ना, कॉमन मल्टीपल, तो अगर कॉमन मल्टीपल होगा तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि कॉमन मल्टीपल मेरे को जैसे ही मिलेगा तो मेरी कैलकुलेशन वहां पे हो जाएगी। आई बात समझ, क्योंकि वो तो दोनों से डिविजिबल होगा। अगर कोई चीज n1 भी हो सकता था बट फॉर द ई, और फिर मैं उसको सब्ट्रैक्ट करने लगती और वही एलसीएम में बाद में लेती, वो मैंने पहले लेकर अपनी ईज ऑफ कैलकुलेशन कर लिया। हाँ, ये ईज ऑफ कैलकुलेशन हो गई तुम्हारी कि तुम्हें भटकना नहीं पड़ा, उछल कूद नहीं करनी पड़ी। सिंपल क्या किया तुमने, व्हाट यू डिड, तुमने सोचा भाई किसी ना किसी का तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा ही ना, और अगर वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा तो इसका मतलब दोनों में आएगा, और दोनों में आएगा तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन में वो आसानी में हो जाएगी। ठीक है, गॉट इट एवरीवन। तो बेसिकली यहाँ पे बिकॉज सेम नंबर वर इन द ऑपरेशन, that's why we took LCM of denominator. Is it clear to all of you now? Yes, sir. इसी केस में क्या हो सकता था, इसी केस में मान के चलो तुम्हारा क्या होता कि 5/4 से मल्टीप्लाई करने के बजाय तुमने 4/5 से कर दिया होता। अगेन क्या लेते, एलसीएम लेते डिनोमिनेटर का, वहां से जो भी तुम्हारा ऑपरेशन करके जो चीजें आती चेक कर लेते, बढ़ रहा है कि घट रहा है, और चाहे वो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, whether it is increasing or decreasing, what you will be doing, you will be just calculating the percentage error on original, what was supposed to be. Got it everyone? आई बात समझ, मधुमित, प्रगति, सुरभि, यशवी, सचिन, गायत्री, सभी? Yes, sir. यस, चलो ठीक है देन। अभी तक जितना हमने किया समझ आ गया आप लोगों को? ठीक है, Yes, sir. चलो आज फिर मैं इसको ज्यादा आगे नहीं खींचूंगा, इतने पे कर लो, ठीक है जी, इतने पे कर लो। कल वाला जो पोर्शन होगा कल नया पोर्शन स्टार्ट करेंगे। गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. इसके जो कुछ प्रैक्टिस Yes, sir. क्वेश्चन होंगे ना, इस बेसिस पे जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे दैट आई विल बी सेंडिंग, ओके। वो मैं आपको भेज दूंगा, एक पीडीएफ भेजूंगा, उससे उसके बेस पे इन दोनों चीजों के ऊपर जो भी बेस्ड क्वेश्चन होंगे दैट वी विल बी डूइंग, ओके। अगर उसमें कोई दिक्कत होगी तो आप बता दोगे मेरे को। आई बात समझ? एंड मेक श्योर, अब एक चीज समझ लो, आई एम सेइंग इट लाउड, ठीक है, सुन लो इस बात को। इफ आई एम इंट्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू टू यू, अगर मैं आपको कुछ नई चीज बता रहा हूं तो इट मीन्स यू हैव टू वर्क ऑन दैट। ये नहीं कि आप फिर वो 36 साल पुराने कॉन्सेप्ट को ही आप वो कर रहे हो वहां पे, फिर मेरी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। एंड आई एम गिविंग यू गारंटी, अगर इस बेस पे अगर आप वर्क करोगे ना तो 3 से 4 दिन की बात है, 3 से 4 दिन लगेंगे इस प्रोसेस में फेमिलियर होने में, और उसके बाद आप अपने आप को ना बाकी जो 80% जनता है ना उससे आप आगे रखोगे, ठीक है। तो मेक श्योर अगर कुछ नई चीज सिखा रहा हूँ रेशियो के फॉर्म में चीजें, तो आप उस पर अपनी कमांड बनाओगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कि फिर बेवकूफों की तरह 100 लेके क्वेश्चन कर रहे हो, इधर उधर कर रहे हो, ये काम बिल्कुल नहीं करना है। गॉट इट एवरीवन? भानु, दिव्या, दुष्यंत, गायत्री, कार्तिक, मधुमित, प्रगति, सुरभि, यशवी एंड सचिन, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, फिर बंद कर रहे हैं अभी, ओके। एंड रिकॉर्डिंग Okay. अवेलेबल होगी, देख सकते हो, ठीक है, 10 मिनट बाद मिल जाएगी यही रिकॉर्डिंग सेक्शन में, ओके। Okay,